Yes, so hey class 10th, a very good afternoon to all of you. Yes, one school is over, now the next school is going to start up, right? Chaliye. So now today we are going to jump into chemistry and we are going to start with metals and non-metals. ये चैप्टर इसलिए थोड़ा सा इजी लगता है बिकॉज वी आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस चैप्टर. हम ये चैप्टर 8 में भी करके आए हैं. वी नो व्हाट मेटल्स आर, वी नो व्हाट नॉन मेटल्स आर. सो ये चैप्टर आपको कंपैरेटिवली इजी लगेगा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर चैप्टर्स. देखिए, when we start up with science in ninth class, we always start with matter, right? हम matter के बारे में बात करते हैं and we know the purest form of matter is element, right? आज के टाइम में अराउंड 120 या 115 एलिमेंट्स के आसपास नोन है एंड उन एलिमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. वन इज योर मेटल्स एंड द अदर वन इज नॉन मेटल्स, राइट? इनके अलावा भी एक कैटेगरी और होती है विच इज मेटलॉइड, मतलब जिनके पास दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक दे हैव some properties of metals and some properties of non-metals, so they are in between that. So there is a transition from metals to non-metals, right? So वो जो metalloids हैं we are not going to study in class 10, so वो हम class 11 के लिए छोड़ देते हैं, right? तो अभी हम क्या करेंगे, we are just going to focus on metals and non-metals. First of all, I would like कि हम इसकी physical properties के बारे में बात करते हैं, be it metal or a non-metal. Physical property means, देखिए जो properties होते हैं, properties are some kind of behavior which is there of a particular element and that behavior हम उसको दो categories में divide करते हैं. One is physical and the other is chemical. Physical means जो आप you know the things which are visible, जो आपको दिख रहा है, right? Chemical is how do they behave with other elements, that is called as chemical properties. Or physical properties are the things which are visible to us, right? For example, metals, they conduct electricity and heat. Number one, they are very good conductors of heat and electricity. अब I just told you कि physical properties होती हैं वो properties जो आप देख सकते हो, right? अब क्या आप ये देख सकते हो कि कैसे वो मेटल जो है वो कंडक्ट कर रहा है? नो, वी कांट see this, but yes we can see that effect. हम वो इफेक्ट देख सकते हैं. जैसे खाना बन रहा है, so what is it? खाना जो है वो मेटल कंटेनर्स में बनता है, राइट? जो हैंडल होगा वो एक इंसुलेटर का काम करता है. इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, they are of copper. Copper is a very good metal which has got very good electrical conductivity. So इसका क्या मतलब है? They really conduct electricity as well as heat. So they are very good conductors of that. Conductors means they allow heat and electricity to pass through them. They are malleable, they are ductile. So first property क्या है metals की? It is that they are very good conductors of heat and electricity. Yes, Dipanshu, are you there? We just started on the topic and we have started the chapter metals and non-metals. I'm just about to describe the physical properties. Just covered one physical property of metals. क्या है वो? They are good conductors of heat and electricity. Okay, then comes they are malleable and they are ductile. अब बारी आती है भाई ये malleable और ductile क्या है? किसको याद है malleable क्या है और ductile क्या है? Yes, who remembers? Malleable का मतलब होता है जब आप किसी metal को you can change that metal into a very thin sheet, right? उस property को हम बोलते हैं malleability. लेकिन इस property में एक add-on चीज आपको लिखनी होती है without breaking, right? आप उसको बिना तोड़े आप पतली पतली शीट्स में उस मेटल को कन्वर्ट कर सकते हो. That process of conversion the metal into very thin sheets, that property is known as malleability, and the element possessing that property is said to be malleable. For example, aluminium, right? Aluminium foil सबके घरों में होती है, right? And we wrap our food in that. And silver की जो foil होती है, which is there on sweets, right? So metals, they are very good. You know, they have this property of malleability. हम metals को बड़े आराम से पतली पतली sheets में convert कर सकते हैं. Then you have ductility. What is that ductility? Ductility is the property of drawing a metal into a wire. आप किसी metal को एक wire में convert कर दो, that is called as ductility. Yes? सबसे अच्छा ductile element कौन सा है?
सबसे अच्छा डक्टाइल एलिमेंट कौन सा होगा? हमारे आसपास क्या है, हमें कॉपर वायर्स मिलती हैं, एल्यूमिनियम इज वेरी गुड इन नेचर, वो काफी अच्छा डक्टाइलिटी शो। यस बेटा, यस, ओके, मुझे आवाज नहीं आई इसलिए आई एम नॉट सेइंग। सो दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर एक्चुअली द डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज। देन दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब जो उनकी सरफेस है दैट इज क्वाइट शाइनी। यू रिमेंबर गोल्ड, यू रिमेंबर डायमंड, डायमंड तो नहीं, डायमंड तो इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो वो तो एक अलग ही चीज है। तो गोल्ड बहुत लस्ट्रस होता है। यू हैव एल्यूमिनियम, आप फॉइल को देखो चमकदार होती है वो, राइट? सो दे आर क्वाइट लस्ट्रस। दे आर हार्ड, हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या है? सख्त होते हैं, मतलब आप उसको बड़े आराम से इजीली प्रेस नहीं कर सकते। फॉइल है, आप उसको क्रश कर सकते हो बिकॉज इट्स वेरी थिन। लेकिन अगर आप आयरन को लोगे, क्या आप आयरन के जो वो होते हैं, सरिये होते हैं, आप उसको उठा के दबा सकते हो? नो, वी कांट डू दैट। स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी, दे आर नोन फॉर स्ट्रेंथ। जैसे कि आयरन है, आयरन जो है इट इज लाइक हम उसकी सारी बैड पॉइंट्स भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज उसके स्ट्रेंथ के फैक्टर को देखते हुए। मतलब मेरा ये बताने का पर्पस है कि स्ट्रेंथ जो है इट्स वेरी ट्रेडमार्क ऑफ मेटल्स। देन दे आर क्वाइट हेवी, that means they're quite denser in nature. Then they are sonorous. What do you mean by sonorous? Sonorous are actually whenever you strike a metal, sound is produced, right? जैसे पुराने टाइम में स्कूल में वो घंटी लगी होती थी या मंदिर में घंटी लगी होती थी, you go there and turn, so it produces a sound. So sonorous is when an element on striking something they produce sound, right? देखिए, जो ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई, अभी मैंने एक जर्नल प्रॉपर्टीज बताई हैं, एक्सेप्शंस इसकी हैं, और हमें एक्सेप्शंस जो है वो बहुत अच्छे से याद करनी है। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू अ ब्रीफ इंट्रो, हम इसकी एक्सेप्शंस अभी थोड़ी देर में ही कर लेंगे। जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है? लस्ट्रस भी होते हैं, हार्ड भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं, राइट? अभी क्या है, सॉरी जितने भी मेटल्स हैं दे आर ऑल सॉलिड एक्सेप्ट योर मर्क्यूरी, ठीक है? एक्सेप्ट योर मर्क्यूरी, बाकी सब मेटल्स दे आर नोन टू बी सॉलिड्स, राइट? दिस वन इज मर्क्यूरी। अब आप देखो द क्लेवरनेस ऑफ ह्यूमंस। देखिए मेटल्स जो हैं we know they are good conductors of heat. They are like एक अकेला मरकरी ऐसा है which is liquid, right? इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है that it does not stick to the glass surface. हमने इसकी इन तीन प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज किया और हम इसको यूज कर रहे हैं इन थर्मोमीटर्स, राइट? हम अपना बॉडी टेम्परेचर इससे मेजर कर लेते हैं, राइट? देखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो नेचुरली जो भी अगर आपका टेम्परेचर रेज्ड अप है तो ऑब्वियसली ये उसको कैचअप कर लेता है। देन लिक्विड है, अगर सॉलिड होगा तो हमें किसी तरह से पता नहीं चलेगा कि व्हाट वाज द टेम्परेचर, तो लिक्विड होने की वजह से इट शोज सम काइंड ऑफ एक्सपेंशन। दूसरा, जैसे अगर ये ग्लास सरफेस है तो यहाँ पे स्टिक नहीं रहेगा, इट विल मूव अहेड, राइट? सो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसके फेवर में थे और हमने उसको यूटिलाइज किया है, राइट? देन दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? केटायंस और एनायंस? यस दीपांशु, क्या बोलेंगे बेटा? केटायंस और एनायंस? केटायंस, yes, we call them as cations. They are very good, they form, yes, they form cations, and they are electropositive in nature because they are forming positive ions. Then most abundant जो metals हैं they are aluminium, iron, calcium, sodium, potassium, magnesium, ये आपके बड़े abundant metals हैं, right? नाउ वी गो अप विद नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स में देखते हैं कि एग्जैक्टली जो एक इंट्रो टाइप है वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। चलो उनके बारे में थोड़ी सी नजर मार लेते हैं, राइट? चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कोई कंडक्शन में हेल्प नहीं करते। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दे डोंट शो मेलेबिलिटी, दे डोंट शो डक्टिलिटी, मतलब आप इनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इनसे वायर्स नहीं बना सकते हो। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा। चॉकलेट जब काफी टाइम पड़ी रहती है, आप कभी देखो वो कैसी बन जाती है, अंदर से पाउडरी सी निकलती है, राइट? आप उसको ऐसे, अदरवाइज चॉकलेट कैसी होती है, आप उसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर जो थोड़ी सी भी भुरभुरी चॉकलेट होती है, कैसी होगी? इट्स लाइक विद फुल ऑफ एयर स्पेसेस इन बिटवीन दैट। सो सेम थिंग इज विद नॉन मेटल्स, दे आर नॉन लस्ट्रस, कोई अपीयरेंस शाइनी नहीं होती, डल सी अपीयरेंस देते हैं, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर देयर। अभी हम एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
दे आर सॉफ्ट, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर लाइट, मतलब क्या है कि इनकी डेंसिटी जो है वो काफी हल्की है, एंड दे आर नॉन सोनरस, मतलब अगर आप इनको किसी चीज से स्ट्राइक कर रहे हो तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ साउंड लाइक कार्बन, सल्फर। अब देखो, till date we are quite familiar with 22 non metals, हमारे पास 22 non metals प्रेजेंट हैं, जिसमें से बेटा 10 तो सॉलिड्स हैं, 11 आपके गैसेस हैं, एंड just one is your liquid and that is bromine. Okay, ये आपके नेगेटिव आयंस बनाते हैं, that means they form anions and they are electronegative in nature. सबसे ज्यादा अबंडेंट है ऑक्सीजन एंड सेकेंड नंबर पे है सिलिकॉन, राइट? अगर हम बात करते हैं abundance की, like maybe in compound form, maybe in anything, right? Then you have carbon, nitrogen, sulfur. Okay, चलिए अब हम डिटेल में करते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? देखिए, जब हम डिटेलिंग में बात करते हैं तो हमारे जो एक्सेप्शंस हैं वो निखर निखर के आते हैं, हम बोलते हैं ना एक्सेप्शंस तो होती ही होती हैं, राइट? चलिए अब हम पहले लेंगे मेटल्स। मेटल्स हम एक ब्रीफ इंट्रो ले चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर मिलिएबल। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है कि ये मिलिएबल है। सो वी नो दैट क्या होता है मिलिएबिलिटी, कि भाई आप इनको मार मार के पतली शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हो। यस, यू कैन बीट देम इनटू थिन शीट्स। देन दे आर डक्टाइल, मतलब आप इनको वायर्स, बहुत पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो जो गोल्ड है, अब ये आपको याद रखना है, द मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है? दैट इज गोल्ड। AU जो है, दिस इज गोल्ड। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि जब आपके पास नोट्स पहुंचे तो आपको याद रहे। गोल्ड इतना डक्टाइल होता है ना बेटा कि अगर आप सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड ले रहे हो तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। अब आप सोचो, गोल्ड वैसे भी बेटा हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये ज्वेलरी में काफी ज्यादा यूज होता है। ज्वेलरी में क्या है, आप इतनी सारी डिजाइनिंग कर रहे हो, यू आर डूइंग सो मच, यू नो देयर इज सो मच ऑफ डिजाइनिंग इन गोल्ड। सो क्यों पॉसिबल है? बिकॉज गोल्ड इज रियली डक्टाइल, आप उससे बहुत पतली पतली तारें बना सकते हो और वो टूटेगा नहीं, राइट? They are said to be good conductors of heat and electricity. मैंने आपको बताया पहली प्रॉपर्टी हमने यही की थी कि मेटल्स का तो ट्रेडमार्क होता है that they are good conductors of heat and electricity. And you won't believe, सिल्वर जो है it is the best conductor of heat and electricity both. दोनों का सिल्वर जो है वो बेस्ट है। अब बात आती है बेटा, हमने ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बात की थी कि अगर हमारा सिल्वर जो है it is the best conductor of electricity, then why don't we use silver as electrical wires? Yes, शीतल, हम अपने घरों में जो तारें लगाते हैं बिजली की, why don't we use silver अगर वो इतना ही अच्छा है तो? Yes, yes बेटा। हाँ जी, सिल्वर क्या होता है? हाँ जी बताओ। मैम, आपकी आवाज कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज कट के आ रही है? आप क्या पूछ रहे हो? मैंने ये पूछा कि सिल्वर जो है, मैंने अभी एक स्टेटमेंट दी कि सिल्वर इज द बेस्ट नोन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन व्हाई डोंट वी यूज सिल्वर एज लाइक इलेक्ट्रिकल वायर्स? हम इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए सिल्वर को क्यों नहीं यूज करते? व्हाई डोंट हम कॉपर को ही क्यों यूज करते हैं? यस, सिल्वर क्या होता है? इट्स वेरी कॉस्टली, घर का बजट हिल जाएगा पूरा का पूरा, राइट? तो घर बनाने का जो बजट है वो थोड़ा सा कॉपर। यस, कॉपर में बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कॉपर चीपर। यस, इट इज चीपर। और सिल्वर जो है इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और आप अगर उससे तारे बनाओगे तो ऑब्वियसली कोई लेके जाने में भी कोई परहेज नहीं करेगा, राइट? तो पुअरेस्ट इज, अब ये याद रखना, पुअरेस्ट मतलब होता है कि ना के बराबर कंडक्शन है, बिल्कुल बैड कंडक्टर्स माना जाता है, एंड दैट इज लेड एंड मरकरी। ठीक है जी, लेड जो है और मरकरी। अब ये देखो, Hg जो है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे, लेकिन हाँ मरकरी हीट कंडक्ट करता है, राइट? सो ये हमारे क्या हैं? दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेड एंड मरकरी। देन दे आर लस्टरस, आप इनको पॉलिश कर सकते हो, क्लियर है? और विथ टाइम क्या होता है, मेटल्स जो हैं कुछ टाइम के बाद थोड़े से डल हो जाते हैं, लाइक
मतलब ऐसे लगेगा जैसे थोड़े डर्टी हो गए हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज अब देखो मेटल्स जो हैं दे आर नोन टू बी क्वाइट रिएक्टिव, काफी एक्टिव होते हैं ये। क्या करते हैं ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बोनेट है या कोई कुछ भी चीज है, उनके साथ ये रिएक्ट करते रहते हैं एंड इन द एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड लेयर्स। पतली पतली लेयर्स बन जाते हैं। जैसे सिल्वर है, अब सिल्वर कुछ टाइम के बाद ना काला पड़ना शुरू हो जाता है, राइट? अब वो क्यों काला पड़ रहा है? ये हमने केमिकल रिएक्शंस में किया था, बिकॉज ऑफ द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। यस, दे आर क्वाइट हार्ड। हमें मालूम है मेटल्स जब आते हैं ना, नाम आता है मेटल्स, तो दिमाग में क्या आता है? हार्डनेस, राइट? बहुत सख्त होते हैं ये। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको, मतलब क्या है, आप इनको नाइफ से काट सकते हो। दे आर सो सॉफ्ट, राइट? सो दे कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है, आप इतने सॉफ्ट होते हैं ये कि हम इसको चाकू से भी काट सकते हैं, जैसे हम पनीर काटते हैं, राइट? उतने ही सॉफ्ट होते हैं ये। दे आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ऑब्वियसली सोडियम और पोटेशियम है ही इतने सॉफ्ट, वो क्या वेट उठाएंगे? स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा वजन वो उठा लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग, राइट? जैसे कि हमारे आयरन, आयरन देखो क्या है, अगर आप ध्यान करो, जितने भी ब्रिजेस होते हैं या रेलवे ट्रैक्स होती हैं, ये सब की सब किसकी बनी है? दे आर मेड ऑफ आयरन ओनली। जबकि आयरन में ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्योंकि वो रिएक्टिव है तो इट अंडरगोज रस्टिंग, बहुत जल्दी रस्टिंग होती है उसमें। लेकिन फिर भी उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, कि उसकी जो स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी है ना, उसको कोई भी ओवरकम नहीं कर पा रहा। ठीक है, देन दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये ज्यादातर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट योर मर्करी, राइट? मर्करी कैसा है बेटा? इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। they have got high melting point and boiling point। सिर्फ आपका सोडियम और पोटेशियम जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफी लो होते हैं, राइट? अब देखो आयरन जो है बेटा, ये देखो आयरन, आयरन जो है वो करेगा 1535 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट करता है। अब देखो कितना फायदा है उसका ब्रिज बनाने का। नहीं तो क्या होगा अगर सपोज करो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ना होता, ठीक है, इट वुड बी अराउंड, अगर ये 100 से भी कम होता तो क्या होगा? हमारे आसपास सन की रेज तो लगातार पड़ रही है, इनका टेम्परेचर भी काफी होता है, तो वो तो पिघल के साइड पे हो जाएगा। सो मेटल की ये एक और प्रॉपर्टी है, आयरन के फेवर में जाती है, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है अलोंग विद द स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है, दो ऐसे मेटल्स हैं जो हमारी बॉडी हीट से ही मेल्ट कर जाते हैं, वो कौन है? गैलियम एंड सीजियम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज के लिए भी, वन वर्ड के लिए भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गैलियम एंड सीजियम, दे आर द टू एलिमेंट्स विच मेल्ट। आप उसको अपने पाम में रखोगे ना, थोड़ी देर ऐसे करोगे वो मेल्ट हो जाएंगे, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है। क्लियर है? यस, Yes, ma'am. yes, they have got high densities। इनकी जो densities है ना वो काफी high होती हैं। अब what do you mean by density? Density is mass per unit volume, right? Mass over volume, that means एक particular volume में they have got lot of mass, right? तो इसका मतलब क्या है? जो particles होंगे ना वो बहुत पास होते हैं, तो इसके वजह से they are quite heavy, भारी होते हैं ये, except your sodium and potassium। ओके, देन दे आर सोनोरस, जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। आप किसी ऑब्जेक्ट से इसको स्ट्राइक करो तो आवाज प्रोड्यूस होती है। देन दे आर सिल्वर और ग्रे इन कलर। ठीक है, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना वो सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं। एक्सेप्शन है सिर्फ आपकी, सॉरी इट्स एक्सेप्शंस क्या है? कॉपर एंड गोल्ड। गोल्ड जो है इट्स येलो इन कलर, राइट? और जो ये हमारा कॉपर होता है इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है जी, राइट? इसमें कोई दिक्कत? Yes. ओके, चलिए। No, ma'am. नाउ वी विल प्रोसीड ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और साथ में हम इसके एक्सेप्शंस भी देख लेंगे सो दैट हमें अच्छे से पता रहे। देखिए, नॉन मेटल्स ना तो मलिएबल है ना डक्टाइल है, इनफैक्ट वो तो ब्रिटल होते हैं, मैंने आपको बताया ना भुरभुरे होते हैं। सो दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लिखना है, कार्बन नहीं लिखना, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ हमेशा, राइट? ग्रेफाइट आपने हमारे ड्राई सेल्स में होता है, बैटरीज में होता है ग्रेफाइट, राइट? ये ना कार्बन का एक एलोट्रॉप है,
वो हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो ये ग्रेफाइट जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, लेकिन वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। So because of that structure, it is a good conductor of heat and electricity, right? They don't have a dull appearance, कोई lustrous appearance नहीं होती, except iodine. अब देखो exception जो है वो याद करना है आपने। exception क्या है हमारा? iodine. iodine जो है it's very shiny in appearance, बहुत shiny सा नजर आता है, चमकदार एकदम। they are not strong, they are not soft, मतलब आप उसको बड़े आराम से तोड़ सकते हो, ऐसे है। exception diamond. Diamond जो है it is again an allotrope of carbon and you won't believe it is the hardest known substance. ठीक है, it is the hardest known क्योंकि इसका जो structure है वो ऐसा होता है, it provides it extra stability, right? Hardest known substance. और नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था 22 नॉन मेटल्स हैं, जिसमें से 10 आपके सॉलिड्स हैं, 11 आपके गैसेस हैं एंड 1 इज योर लिक्विड। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट डायमंड, राइट? डेंसिटीज काफी कम होती हैं, दैट मींस वो बहुत हल्के होते हैं। देन दे आर नॉन सोनोरस, मतलब आवाज प्रोड्यूस नहीं करते, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ये इनमें खास बात है। ठीक है, सो हियर वी फिनिश द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स and non-metals. Okay,